In the last lecture, we have done the expression for work done, and expression for the work done is given by which formula? W is equal to minus P external into delta V, and delta V can be written as V2 minus V1, where V1 is the initial volume of the gas and V2 is the final volume of the gas. And we also said that the work done depends upon the external pressure. Always during the process here, the work done depends upon the external pressure. Means like suppose for example we are having a cylinder, some gas is enclosed in a cylinder, and cylinder is fitted with a piston. Then here on the piston there is external pressure. So if the external pressure is less, gas will expand easily and amount of the work done will be less. But if the external pressure is more, gas has to use more energy to push up, and so work done will be more. So here I want to say here, the work done in this formula is always depends upon the external pressure. And we also know that there are two types of the work. Work can be negative and work can be positive. Negative means what? It is called as a work done in the expansion process, or it is also called as work done. I'm repeating again and again, work done by the system on the surrounding. Work done by the system on the surrounding. And compression means what? Compression means work done by the surrounding on the system. So till here we have done in the last lecture that this is the formula for the work done. Work done can be negative, work done can be positive. Negative work is called as expansion. So it is a work done by the system, and positive work is the compression, is the work done by the surrounding, or you can say work done on the system. Here it is work done by the system, and here it is work done on the, till here we are done. Now here we are moving on the next concept, and next concept is called as a concept of maximum work. So अभी हमें मालूम है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है. अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो वर्क मिलेगा, बट हमें जो वर्क मिलेगा वो वर्क कैसे चाहिए? हमें मैक्सिमम चाहिए. तो मैक्सिमम वर्क के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, या मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशन क्या होगा, मतलब कौन से कंडीशन में हमारा वर्क मैक्सिमम होगा. सो आई विल एक्सप्लेन दैट. सी हियर. So we know that the formula for the work done is equal to minus P external into delta V. So W is equal to minus P external. Delta V can be written as what? V2 minus V1. So this is the formula for the work done. But we want when the work done can be maximum. So what is the conditions here? Suppose for example, we are having one cylindrical vessel, and in that cylindrical vessel some gas is enclosed. Let the pressure of the gas be P, and the cylinder is fitted with a piston. And always we say here, the piston which we are using, the piston should be rigid, the piston should be frictionless, and the piston should be movable. Always in all the example, whenever we use the piston has to be rigid. Rigid means what? It should not be flexible. Then frictionless means what? There should not be any friction between the side of the container and the piston, and the piston should be able to move up and down. So piston should be movable. Okay, and then here the external pressure acting on the piston here, the external pressure here. Now we want to prove the when the work can be maximum. So I'll just go one by one. If I say first condition, if the external pressure is 0. Now external pressure 0 means what? This is called as expansion
Yes, if the one girl is asking here, what if the piston is not rigid and flexible? Flexible means, you know what? Then the piston will not be able to stand properly. See, this much portion is rigid. Rigid means what it is. If the piston is flexible, then you know what happens. Suppose we are having a cylinder, and the piston, some part is going down, some part is going up, or this the piston can be in this way, or the piston can be in this way, because if this part is flexible, so this part is not flexible, but it is what? Rigid. Means it will remain proper in the position. Okay, that's what. So piston should not be flexible, it should be rigid. Second, it should be frictionless, and it should be movable. Now here, okay, now here, external pressure, suppose I'm first condition, if there is no, see, gas has a pressure P, and if there is no external pressure, and when there is no external pressure, it is called as expansion in vacuum. And expansion in vacuum is called as what? Expansion in vacuum is called as a free expansion. Expansion in vacuum is called as free expansion. And in that case, the work done, what is the work done formula? Minus P external delta V, but here this P external is 0. So in that case, the work done is 0. Means if suppose there is no external pressure, then the work done by the gas is equal to 0. Second condition, if the pressure of the gas, if the pressure of the gas is equal to the external pressure, if this pressure and this pressure are equal, if these two are equal, then again the gas will neither be able to move up nor it will be able to move down. So if these two pressure are equal, the piston will not be able to move and up and down. So again in this case also, the work done is equal to 0. So these are the two conditions in which the work done is 0. Now when can be the work done will be 0? The first condition, when the external pressure is, that is no piston only, no completely vacuum. So in that case the work done is equal to 0. And second case, if the pressure of the gas and the external pressure both are equal, then the piston will neither be able to move down, piston will not be able to move up, piston kahan pe bhi move nahi hoga. In that case also work done is equal to 0. So now you have seen when the work, so now here we'll write one condition, the work done, the third condition I will write here, that is work done goes on work done goes on increasing as as external pressure goes on increasing. So here, but what is the line you can say? work done Goes on increasing as external pressure goes on increasing. Means what is here condition C? Suppose, yes. Suppose for example, if I say the pressure of the gas is equal to 5 atmosphere. Atmosphere is a unit of pressure. Suppose the pressure of the gas is 5 atmosphere and the external pressure of the piston is equal to 1 atmosphere. So pressure of the gas is 5 and the pressure of the piston is 1 atmosphere. So we know that the pressure of the gas is more than the external pressure. So gas will expand, and if this pressure is 1 atmosphere, for example, we say the work done by the gas is equal to 1 joule. Joule is the unit of work. Second, then what we'll say, I'll increase the pressure from 1 atmosphere to 2 atmosphere. Now what I've done, see, gas pressure remains the same. Gas pressure remains the same, and I have increased the external pressure. Now since I have increased the external pressure, because now outside pressure is more, gas has to use more energy to push in the upward direction. So maybe I can say the work done is equal to 2 joule. Now I will increase the external pressure to 4 atmosphere. 4 atmosphere. Now see, gas pressure is 5, outside pressure is 4.
but still outside pressure is less, so gas will expand. But now gas has to use more energy to push the piston in the upward direction, because now what happened, the external pressure increased. So I will say now, for example, the work done is 4 joule. So what we have noticed, the work done by the gas goes on increasing as the external pressure goes on increasing. Now suppose if I say here the external pressure is 4.99, external pressure is 4.99 atmosphere. See again here, the pressure of the gas is 5, but the external pressure is 4.99. So again I can say the pressure of the gas is greater than the external pressure. So again gas will expand, and here the amount of the work done will be what, 4.99 joule. So again what I'm noticing here, as the external pressure goes on increasing, the work done by the gas also goes on increasing. But now here, if I make the external pressure 5 atmosphere, what happens? See, pressure of the gas is 5, external pressure is also 5, both the pressure are equal, so piston will be not able to move up, and therefore the work done will be equal to what, 0. So if I make the external pressure equal to 5 atmosphere, then the work done is equal to 0. And if I make the external pressure 5.01, if I make the external pressure 5.01, then now what happened here? The external pressure is greater than the pressure of the gas, and the process will get reversed. Process will get reversed, and again the work done will be like, for example, 1 got different or 0.1. So what we notice here, see here, then throughout the process, when I have got the work done maximum, I have got the work done maximum, that is I got the work 4.99. When the external pressure is how much, 4.99, means the difference between the driving, the pressure of the gas, and the difference between, that is when the external pressure is maximum. So basically I want to prove the condition here, when can be the work done is maximum. So what is the first condition we said? As the pressure, external pressure goes on increasing, the work done by the gas also goes on increasing. If the two pressure are equal, the work done is equal to 0. And if the external pressure is more than the pressure of the gas, then process will get reversed. So before reverse, both are equal, then 0. So this is the maximum work I'm getting. That means, and this is the maximum work I'm getting when the difference between the pressure of the gas, see pressure of the gas is 5 and external pressure is 4.99. So in this case, pressure of the gas is 5 and external pressure is 4.99. So difference between them is 0.01. The difference between the two is very, very small. Then the work done is maximum. So I can say, or I can generalize one statement. If I want work to be maximum, then the difference between the driving force and the opposing force should be very, very small, and the small difference between the driving and opposing force are called as a reversible process. So in general I can write down the statement here. In general I can write down the statement that maximum work is obtained if difference between driving force and opposing force is infinitesimally small. Infinitesimal means the difference between the two has to be very, very small, very, very small, and the small difference between the two, and this is the condition of reversible process. See, in the one of the last lecture we have done the concept of reversible, and there we have said कि process reversible कभी होगा अगर driving force में और opposing force में अगर difference बहुत ही कम है तो ही process reversible होगा, और अगर हमारा process reversible होगा तो ही हमें क्या मिलेगा, maximum work. So in general कि अगर हमें maximum work का formula find out करना है, तो maximum work के formula के लिए हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए,
रिवर्सिबल होना चाहिए। और दूसरा और एक क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स शुड बी इनफाइनाइटेसिमल। मींस व्हाट, suppose we say the pressure of the gas is P and the external pressure. So first thing is what, the first thing is the pressure of the gas should be infinitesimally greater than the external pressure. मतलब अगर हमें एक्सपांशन चाहिए, एक्सपांशन के लिए गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए। So P means the gas of the pressure should be infinitesimally greater than external pressure. Then here I can say P minus P external can be called as delta P. Delta matlab the difference between these two should be very very small. Like for example, we say the difference between the driving force and the difference between the opposing force is very very small. So small difference is called as a dP. And now I'll rearrange the formula here. So I will P minus delta P. Delta P I have brought on the left hand side. So P external we go on the right hand side, and therefore we have the formula for the work done. What is the formula for work done? W is equal to minus P external into delta V, and therefore W is equal to minus minus, and instead of P external what we can write, P minus delta P. Instead of P external what we can write, P minus delta P into delta V. So basically what I want to prove here, the difference between the driving force and the opposing force should be very very small, and then we get the work done will be maximum. Okay, so here our heading was a very small concept, that is concept of maximum. मतलब अगर ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है तो करेक्ट है, हम लोग वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारा वर्क मैक्सिमम कभी रहेगा, तो हमारा वर्क मैक्सिमम कभी रहेगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स and the opposing force is very very small, and when the difference between them is very very small, the work done will be the maximum, and this is the condition of the reversible process. That means in short, the work can be done maximum if the process is reversible, and then this is the change in the formula. Of course I will be using again that W is equal to minus P external into delta V, but here we know that P is greater than P external because this is greater. So P minus P external is equal to delta P. Then delta P I take it on the left hand side. So P minus delta P is, so instead of P external I can write down here P minus delta P in order to obtain the formula for which work, maximum work. तो ये रहा हमारा मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि वर्क, अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि इसके आगे वाला डेरिवेशन इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि वर्क मैक्सिमम कभी रहेगा। वर्क मैक्सिमम रहेगा अगर ड्राइविंग फोर्स मतलब गैस का प्रेशर, अपोजिंग फोर्स मतलब बाहर का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर में अगर डिफरेंस बहुत बहुत स्मॉल है तो हमेशा वर्क मिलेगा मैक्सिमम। और अगर ऐसा वर्क अगर हमें मैक्सिमम मिल रहा है मतलब एक कंडीशन कौन सा है, रिवर्सिबल है, तो इन शॉर्ट आई कैन राइट डाउन द मैक्सिमम वर्k is obtained if the process is isothermal रिवर्सिबल। मतलब अगर हमें मैक्सिमम वर्क अगर करना है, मतलब वर्क जो हमें वर्क मिलेगा लेकिन वर्क का आंसर अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल होना है। आइसोथर्मल मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आइसोथर्मल में इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर मैंने गैस लिया था लेकिन गैस का मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे गैस फिलअप किया था तो गैस का वो टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में था वही मैंने एंड तक रखा, मैं गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन पिस्टन जो रहेगा पिस्टन कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए हमें, या अगर मुझे मैक्सिमम वर्क के लिए फॉर्मूला अगर निकालना है कि डेरिवेशन क्या रहेगा, तो मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल चाहिए, प्रोसेस शुड बी isothermal. So now we'll obtain the derivation here, that is, now I'm going for the next heading,
expression for, now I'm just going for the next heading. The next heading is expression for maximum work. Expression for maximum work. Okay, expression for maximum work. लेकिन before I go for this topic, just tell me all कि do you have any difficulty in this concept? जो अभी मैंने तुमको concept एक बोला, concept of maximum work में कोई डाउट है क्या? बोलो. ठीक है, मतलब अगर रहेगा तो बोल दो, मतलब अगर नहीं रहेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा. एनीवे, थैंक यू विघ्नेश. बाकी और कोई बोलो. एरॉन, ओके, वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू अथर्व. ठीक है, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम द फॉर्मूला. ये हमारा दूसरा डेरिवेशन है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, और हमें बोलने के लिए भूल गया कि तुम्हें वो डेरिवेशन नोटबुक में लिखना है. जो मैंने लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किया था ना, कौन सा डेरिवेशन किया था? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स एंड डेल्टा वी. मैंने नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. नोट से तुम्हें नोटबुक में एक बार कॉपी कॉपी करना है. तुम्हें मतलब डेरिवेशन पता चल जाएगा कि डेरिवेशन कैसे होता है. ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट डेरिवेशन. एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. हमारा मैक्सिमम वर्क कैसे होगा देखो. लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारे पास एक एक टेक्स्ट बुक थोड़ा शेयर करता हूँ. एक मिनट. ये देखो, अभी मैं ये डेरिवेशन करने जा रहा हूँ. एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. मैं कंसेप्ट तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देखो. डायग्राम में देखो, अगर डायग्राम देखोगे यहाँ पे, तो सी यहाँ पे उन्होंने गैस लिया हुआ है. गैस, एक गैस अंदर भरा हुआ है, और गैस का प्रेशर कितना रहेगा? द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू पी. और ये बाहर का जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना रहेगा? पी एक्सटर्नल रहेगा. करेक्ट. बट अगर पहले डायग्राम में देखो, तो पहले डायग्राम में अगर नोटिस करोगे, पिस्टन के ऊपर कुछ मास रखा हुआ है. मास, मास मतलब कुछ ब्लॉक रखे हुए, ब्लॉक. तो अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 ब्लॉक है, 10. सेकेंड डायग्राम में अगर देखोगे, तो सेकेंड डायग्राम में मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक कम, खाली एक ही ब्लॉक कम कर दिए. तो अगर पिस्टन का हाइट देखोगे तो हाइट थोड़ा ऊपर चला गया. थर्ड डायग्राम में अगर देखोगे, तो एक एक यहां से ब्लॉक कम कर दिया है, और एक यहां से ब्लॉक कम कर दिया. दो जगह से, तो दो ब्लॉक कम कर दिए. तो बाहर का वजन कम करने के कारण पिस्टन थोड़ा और ऊपर का है. ठीक है. और बाद में अगर देखोगे, तो यहाँ पे देखो एक कम है, यहाँ पे एक कम है, इधर और एक कम कर दिया. मतलब उन्होंने क्या किया है, इस बाहर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम करे. बाहर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम करे. डायग्राम में अगर तुम्हें पता चल रहा होगा तो. ओके, तो नोटिस करोगे डायग्राम में, मतलब कि एक डायग्राम में क्या कर रहा है, बाहर का प्रेशर है वो धीरे धीरे से कम करे, धीरे धीरे से कम कर रहे. तो गैस भी धीरे धीरे से एक्सपांड हो रहा है. बस ये कंसेप्ट मुझे बताना था. अभी मैं उसमें डेरिवेशन बता देता हूँ. ओके, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. अगेन हियर आई स्टार्ट विद द डेरिवेशन. देखो, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो डेरिवेशन वो आता है उसे हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू मैक्स. डब्ल्यू मैक्स मतलब यहाँ पे भी हमें वर्क मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर हमें यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वर्क का, वो कैसे रहेगा? मैक्सिमम रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. तो अभी देखो, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सपोज कंसिडर अ सिलेंडर, some gas is enclosed in a cylinder,
and cylinder is fitted with a piston. और में भी मैंने ऐसे यहाँ पे 5 ब्लॉक रखे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ब्लॉक रखे. पिस्टन, पिस्टन हमेशा कैसे रहेगा? यहाँ पे जो पिस्टन हम लोग यूज करेंगे वो रिजिड रहेगा. दूसरा, पिस्टन फ्रिक्शन लेस रहेगा. और तीसरा, पिस्टन शुड बी मूवेबल रहेगा. मतलब पिस्टन रिजिड होना चाहिए, पिस्टन फ्रिक्शन लेस और मूवेबल. क्यों मालूम है? मैंने अभी यहाँ पे अंदर गैस भर दिया है और गैस का प्रेशर कितना रहेगा? P रहेगा. और मे बी गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री है. तो अभी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. वी कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी देखो, सबसे पहले आई जस्ट राइट डाउन वन सेंटेंस. कंसीडर n मोल. यहाँ पे जो हमने गैस लिया है, गैस का अमाउंट कितना लिया? n मोल. कंसीडर n मोल ऑफ, और जो गैस है वो गैस कौन सा रहेगा? आइडियल गैस रहेगा. कंसीडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder. मतलब यहाँ पे जो हम लोग गैस लिया हुआ, गैस का अमाउंट कितना लिया? n मोल लिया है. कंसीडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस enclosed in a cylinder fitted with rigid frictionless और मूवेबल पिस्टन. देखो, फ्रिक्शनलेस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये कंटेनर और फ्रिक्शन, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा. और अगर यहाँ पे हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो हमें वैसा नहीं चाहिए. जो पिस्टन होगा, पिस्टन और ये वॉल्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शन. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आई हैव सेड? कंसीडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एनक्लोज, यहाँ पे अंदर भर दिया है, enclosed in a cylinder fitted with a rigid, frictionless and a movable piston, and having its volume V1 at temperature T. मतलब हम लोग यहाँ पे जो गैस लिया हुआ है, ये गैस का जो हमारा पास इनिशियल वॉल्यूम है, the initial volume of the gas is V1. So hopefully you all must have understood the first step. Is some gas is enclosed in a cylinder. How much gas? N mole. N mole of the gas is enclosed in a cylinder. Cylinder is fitted with a rigid, frictionless, movable piston having its initial volume V1 at temperature T. एक टेम्परेचर उसका T है, कितना जो भी हो, लेकिन जो भी टेम्परेचर रहेगा, ये मैंने 25 का लिए अपने समझने के लिए लिया है. 25 मतलब जो भी टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. सेकेंड व्हाट आई विल से, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गैस का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल है. ये गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल है. और दोनों प्रेशर अगर इक्वल है, मतलब पिस्टन विल नॉट बी एबल टू मूव अप और पिस्टन विल नॉट बी एबल टू मूव डाउन. मतलब सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मतलब हमारा जो यहाँ अभी सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम कौन से कंडीशन में है? द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब पिस्टन ऊपर भी नहीं आ रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है. बट सपोज अगर मैंने इफ external pressure is reduced by small amount, if external pressure is reduced by a very small amount, very small amount मतलब कैसे करूंगा मैं बाहर का प्रेशर थोड़ा सा कम कर दूंगा. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ का प्रेशर अगर 4 है या यहाँ का प्रेशर अगर 5 है और अभी बाहर का प्रेशर भी 5 है, तो मैं 4.9 करूंगा. तो यहाँ का प्रेशर 5 रहेगा
और यहाँ का प्रेशर 4.9 होगा, मतलब मैंने एक एक कम कर दूंगा तो क्या होगा, सेकेंड डायग्राम में नोटिस करो, सेकेंड डायग्राम में यहाँ देखो ये हमारा वॉल्यूम V1 यहाँ तक था, तो हमारा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, द पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट स्लाइटली, मतलब कितना होगा, ये हमारा यहाँ पे देखो ये इनिशियल वॉल्यूम था और वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ा, तो स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ डीवी, स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डीवी, मतलब हमारा जो वॉल्यूम बढ़ा वो बहुत स्मॉल अमाउंट से बढ़ा, कितने अमाउंट से बढ़ा हमारा वॉल्यूम डीवी से। और अगेन हियर आई एम सेइंग 1 2 3 4 5 ब्लॉक, 1 2 एंड 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक मैंने कम कर दिया और एक गैस का प्रेशर। अगेन व्हाट हैपन, again, so what we notice, if the external pressure is reduced by a small amount, then the volume of gas is increased by a small amount, volume of the gas is increased by a small amount, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, ओके, बट अभी बढ़ने के बाद क्या होगा, अभी थोड़े टाइम बाद वापस क्या होगा, गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल होने के कारण हमारा सिस्टम कैसे आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अभी थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड डायग्राम में मैं बाहर का प्रेशर थोड़ा और कम कर देता हूँ, और कम करेगा तो अभी देखो पिस्टन यहाँ पे हमारा हाइट है पिस्टन का, अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ तक आ गए पिस्टन, ओके। सो हियर 1 2 3 4, अभी मैंने क्या यहाँ पे 5 था ना, इधर भी 4 किया दिया और मैंने यहाँ भी तो थोड़ा सा वजन बाहर से कम कर दिया, तो गैस अभी वापस कितना एक्सपांड हुआ है, द वॉल्यूम हैज आल्सो इंक्रीज बाय व्हाट यूनिट, देखो यहाँ तक वॉल्यूम था अभी यहाँ पे चला गया, तो स्मॉल वॉल्यूम इंक्रीज, सो अगेन व्हाट वी हियर, अगेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, then the volume of the gas is increased by again small amount, by small amount, that is by what, dV, करेक्ट। और फिर हम लोग में लास्ट में, लास्ट का डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैंने अभी वापस थोड़ा और वजन कम कर दिया, तो पिस्टन यहाँ तक चला गया, जो यहाँ पे था अभी यहाँ पे चला गया, अगेन स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम विल बी व्हाट, डीवी, स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम डीवी, और ये हमारा रहेगा फाइनल वॉल्यूम। मतलब मुझे गैस को एक्सपांड करना था V1 से लेके V2 तक, लेकिन मैंने डायरेक्टली एक साथ किया क्या, नहीं, मैंने बाहर का प्रेशर थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पे बाहर का प्रेशर थोड़ा और कम कर दिया, यहाँ पे बाहर का प्रेशर और थोड़ा कम कर दिया, और ऐसे करके मैं V2 तक गया। तो आई एम गोइंग, मतलब मैंने क्या किया, हर बार ये ध्यान में रखा कि दोनों के बीच का डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, एंड देन आई एम रीचिंग एट विच व्हाट, V2। तो मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या बोलना है कि अपना जो गैस है वो एक्सपांड हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके फाइनल वॉल्यूम V2 तक, लेकिन कैसा एक्सपांड हो रहा है, स्मॉली स्लोली एक्सपांड हो रहा है, हर बार वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मुझे जो वर्क मिलेगा, मुझे जो वर्क मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, सी हमारा नॉर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बट लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर बार हमारा वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, डीवी से चेंज हो रहा है, तो मुझे जो वर्क मिलेगा वो क्या रहेगा, DW, सो DW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। देखो ध्यान में आ रहा है क्या, एवरी टाइम मैं बाहर का प्रेशर थोड़ा कम कर रहा हूँ, थोड़ा स्लाइटली कम कर रहा हूँ, स्लाइटली मतलब इनफाइनाइटेसिमली, मतलब बहुत 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 कम, इतना डिफरेंस है, तो मैं बाहर का प्रेशर बहुत थोड़ा कम करूँ तो गैस थोड़ा ही एक्सपांड हो रहा है, गैस थोड़ा सा एक्सपांड होने के कारण वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम हमारा डीवी मतलब स्लाइटली बढ़ रहा है, और वॉल्यूम अगर हमारा स्लाइटली बढ़ रहा है तो हमारा जो वर्क होगा, वर्क भी कितना मिलेगा, स्मॉल वर्क मिलेगा। So every time we get the small work dW because there is small change in the volume dV. लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा मैं चेंजेस कर लेता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब गैस का प्रेशर इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, बट एंड बिकॉज ये प्रेशर ज्यादा होने के कारण तो P माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीपी, डीपी मतलब अभी तुम लोग यहाँ तो डेल्टा लिखा था, अभी यहाँ पे डी, की डेल्टा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डेल्टा वी मतलब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, और डीपी मतलब बहुत बहुत स्मॉल डिफरेंस है, मतलब डेल दोनों का मीनिंग डिफरेंस ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस फॉर एग्जांपल 0.1 का
0.001 का है, मतलब दो क्वांटिटी में डिफरेंस है लेकिन थोड़ा ज्यादा है 0.1, लेकिन दो क्वांटिटी में डिफरेंस बहुत ही कम है तो डीपी लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा गैस का प्रेशर, गैस एक्सपांड हो रहा था, गैस एक्सपांड हो रहा था मतलब गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो करेक्ट। तो यहाँ पे देखो द प्रेशर ऑफ द गैस इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रेशर से ये प्रेशर को माइनस करूंगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डीपी होगा। तो अभी मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, P माइनस डीपी, इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आया और P एक्सटर्नल को राइट साइड में लेके गया, तो मुझे एक्सटर्नल के जगह फिर ये अपना जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, और P एक्सटर्नल के जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे, P माइनस डीपी इनटू डी, स्मॉल वर्क डन, क्या हुआ, स्मॉल वर्क डन। और अभी मैं ब्रैकेट अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी, ये माइनस पी प्लस डीपी इंटू डीवी, ये माइनस पी माइनस माइनस प्लस डीपी, और मैं स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस डीपी डीवी। अभी डीपी मतलब क्या था, स्मॉल चेंज इन द प्रेशर, मतलब ये दो प्रेशर के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम था। और डीवी का मतलब क्या है, डीवी का मतलब है स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब हमारा वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब अगर मैंने ऐसा बोला कि डीपी का वैल्यू है 0.001 और डीवी का वैल्यू है 0.001, तो ये दो स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन और ही स्मॉल आ जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर कितना आएगा, 0.0001, इतना स्मॉल। एंड देयरफॉर ये स्मॉल टर्म है, मतलब डीपी स्मॉल चेंज इन द प्रेशर है, डीवी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम है, और दो स्मॉल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा मल्टीप्लीकेशन और भी स्मॉल आएगा, एंड देयरफॉर दिस टर्म इज निग्लेक्टेड, मतलब हमें ये टर्म नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि दो नंबर ओरिजिनली छोटे हैं और दो मैथमेटिक्स में दो स्मॉल नंबर का मल्टीप्लीकेशन और छोटा आता है, इसलिए हमें डीपी और डीवी को निग्लेक्ट करना है। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फिर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। तो आई जस्ट राइट डाउन 1 मिनट। So I got the formula here, dw is equal to minus pdv, मतलब अगर वॉल्यूम चेंज अगर स्मॉल होगा तो मुझे वर्क डन भी स्मॉल मिलेगा, करेक्ट। बट अभी मैं क्या करूंगा, हर बार मतलब अगर मैंने डायग्राम दिखाऊंगा तो यहाँ पे मुझे स्मॉल वर्क मिला dw, यहाँ पे मुझे स्मॉल वर्क मिला dw, यहाँ पे मुझे स्मॉल वर्क मिला dw, और यहाँ से भी मुझे वर्क मिला dw। तो ये पहले स्टेप में मिला हुआ वर्क, सेकेंड स्टेप में मिला हुआ वर्क, थर्ड स्टेप में मिला हुआ वर्क, और लास्ट स्टेप में मिला हुआ वर्क। आई विल ऐड ऑल द वर्क टुगेदर, add the work together, and adding all work together are called as integration। मतलब मेरा इनिशियल वॉल्यूम V1 था, मेरा फाइनल वॉल्यूम V2 था, हर बार मुझे छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिला, तो आई कैन ऐड ऑल वर्क टुगेदर, एंड देयरफॉर I can have the here integration, you know this मैथमेटिक्स में मालूम रहेगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ ऑल नंबर टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो हमें हर बार हमें स्मॉल वर्क मिल रहा था, सारे वर्क को मैं अगर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से मुझे जो वर्क मिला था वो वर्क से लेके फाइनल तक जो मुझे वर्क मिला है वो वर्क तक सारे वर्क को मैं साथ में ऐड करूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, आई थिंक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन किया रहेगा, इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और मेरा इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम था V2। मतलब इनिशियली हम लोग जब स्टार्ट किया था तो मेरा वॉल्यूम V1 था, और फाइनली हम लोग ने जब स्टॉप किया तो वॉल्यूम V2 था। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम लोग V1 से V2 तक जाएंगे, अगर हम लोग V1 से V2 तक जाएंगे तो सारे वर्क्स को अगर ऐड करेंगे तो वर्क कितना मिलेगा, करेक्ट। सो हियर integration of the dw, that is from initial to final, and that work is called as a maximum work, adding all small work together right from the initial till the final, that is called as a w max, is equal to minus p
इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था, और यहाँ पे मैंने dV लिखा। अभी मैंने देखो यहाँ पे अगर एक स्टार्टिंग में बोला था पॉइंट, यहाँ पे मैंने जो सिलेंडर के अंदर जो गैस लिया हुआ है वो गैस कौन सा गैस है? सिलेंडर के अंदर जो मैंने गैस लिया हुआ है वो गैस कौन सा गैस है? आइडियल गैस है, करेक्ट। तो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर बाय यूजिंग आइडियल gas equation, by using ideal gas equation. And what is ideal gas equation? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे P की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा? Therefore P इक्वल टू nRT अपॉन V। तो यहाँ पे मुझे जो P का वैल्यू मिला है, P का वैल्यू क्या मिला? मैंने पहले कौन सा इक्वेशन यूज किया? आइडियल गैस इक्वेशन, जो लास्ट ईयर तुमने चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में किया होगा। व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे P की जगह वैल्यू लिख दूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, W max इज इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V इंटीग्रेशन between the volume V1 to final volume V2 into dV। लेकिन अभी यहाँ पे मैथ्स में इंटीग्रेशन किया है क्या? कोई एक जन रिप्लाई दे दो। 11th में इंटीग्रेशन किया है क्या? यस, हैव यू ऑल डन द इंटीग्रेशन इन 11th स्टैंडर्ड? ओके, नहीं, ठीक है, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन का मतलब था, एटलीस्ट इंटीग्रेशन का मतलब तो मेरे समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग सारे इंटीग्रेशन, द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट एडिंग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज टुगेदर। स्मॉल स्मॉल वर्क हमें जो मिला है, सारे वर्क को साथ में ऐड करो, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या था, हमारा इक्वेशन आया था PV इज इक्वल टू nRT आया था। मैंने P इज इक्वल टू क्या लिखा? nRT अपॉन V लिखा। और मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूला है P का, उसकी जगह मैंने लिख दिया, करेक्ट। तो अभी मैंने लिखने के बाद हियर W max इज इक्वल टू माइनस, अभी n मतलब नंबर ऑफ मोल। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, हम लोग कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन नहीं करते। कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट है, n मतलब नंबर ऑफ मोल। हम लोग गैस को कितना भी एक्सपांड करें, हम लोग गैस को कितना भी एक्सपांड करें, गैस का अमाउंट नहीं चेंज हो। देखो, अगर मैंने यहाँ पे गैस का अमाउंट कितना लिया हुआ है, n मोल लिया है, तो गैस एक्सपांड हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अमाउंट वही रहेगा। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने गैस का 1 मोल लिया है, तो यहाँ पे भी गैस का 1 मोल ही रहेगा, यहाँ पे भी गैस का 1 मोल ही रहेगा, और यहाँ पे भी गैस का 1 मोल ही रहेगा। खाली गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बट अमाउंट विल नॉट चेंज। सो देयरफॉर n इज अ कांस्टेंट नंबर, एंड इन मैथमेटिक्स ये नंबर n कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। r मतलब गैस कांस्टेंट है, हर गैस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन जैसे भी 11th में किया रहेगा, R इज इक्वल टू 8.314 जूल। हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, और जो टर्म कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं करते मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे फिर क्या बचा? V1 टू V2 dV अपॉन V। तो यहाँ पे dV था, ये मैंने V यहाँ पे लेके आया। V यहाँ पे क्यों लेके आया? क्योंकि हमारा यहाँ से वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल n चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर और एक R, ये तीन टर्म कांस्टेंट है, उनका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। और मैथमेटिक्स में जिस टर्म का वैल्यू कांस्टेंट है उनका इंटीग्रेशन नहीं करते, इसलिए मैंने nRT को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा। यस, डाउट है? nRT ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मतलब इनका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है हम लोग उनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, करेक्ट। तो यहाँ पे V1 टू V2 और वॉल्यूम चेंज हो, इसलिए वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके बाद है W max
इज इक्वल टू माइनस nRT। और फिर अभी मैथ्स में एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? हे बघ विमान इज पडलं, ऑडिओ बंद करा कोणाचा? कराचीमध्ये विमान पडलं, अपघात, हा 100 जण पडू दे. कराचीमध्ये विमानाचा मोठा अपघात, अरे कोणाचं ऑडिओ ऑन आहे बघा रे. 100 पेक्षा जास्त प्रवासी होते. अथर्व सांग. रहिवासी भागात विमान पडल्याने सर कुठली तरी पोरगी आहे ती. तिला सांगा म्हणा ऑडिओ बंद कर, ऐकायला जात नाही का तिला? थांबा 1 मिनिट बघतो, थांबा. सर तुम्ही म्यूट करा ना सगळ्यांना. काय माहिती. थांबा 1 मिनिट. हा चला केलं. हा म्यूट ऑन. Okay, so what we are having, W max is equal to minus nRT. This number cannot be integrated, and then integration. See, in the maths we have learned the formula. कसं तुम्हाला काही डाऊट असेल मला विचारू शकणार नाही ना. हा मॅथ्स मध्ये तुम्ही इंटिग्रेशन केलं. इंटिग्रेशन ऑफ dx upon x is equal to log x. Integration of dx upon x is equal to log x. Log हा फॉर्म्युला आहे. This is the formula. So integration of, so now similarly here integration of dv upon v, पण अपन dv upon v we write here as what? ln v. ln मतलब ln का मतलब होता है बेस e. पहला हम लोग e ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. सो माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv upon v is equal to what? ln v. and between the limit इनिशियल लिमिट हमारा v1 है और फाइनल लिमिट हमारा v2 है. मैथमेटिक्स में अगर लिमिट किया रहेगा तो हियर वी से W max is equal to minus nRT. Now here I'll write ln. We substitute the value of the final limit. यहाँ पे आएगा ln v2 minus ln v1. ln v2 minus ln v1. मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म है उसके अंदर पहले फाइनल लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में उसी के अंदर हम लोग इनिशियल लिमिट का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ln क्यू ए फॉर्मूला ही है. जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि dx अपॉन x log x होता है, लेकिन log x के पहले वाला स्टेप होता है ln x होता है. ln का मतलब बेस e. ln का मतलब बेस e. तुम लोग जब इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा. यस, हाँ नेचुरल लॉग बराबर. ln मतलब नेचुरल लॉग, करेक्ट. तो यहाँ पे W max इज इक्वल टू माइनस nRT. और देखो माइनस nRT कर, वेरी गुड, माइनस nRT. अभी यहाँ पे क्या दिया है देखो, ln v2 माइनस, अभी लॉग का फॉर्मूला देखो. अभी लॉग में कैसे करते हैं, log a माइनस log b. अगर log a माइनस log b रहेगा तो हम log a अपॉन b लिख सकते हैं. सिमिलरली ln v2 अपॉन v1 अगर रहेगा तो ln v2 माइनस ln v1 कैन बी रिटन इज व्हाट, ln v2 अपॉन v1. तो ये मुझे फॉर्मूला क्या मिला, W max इज इक्वल टू minus nRT ln v2 upon v1. correct. So now I'll just write down here W max. लेकिन ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है. नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस e होता है, लेकिन we use लॉग बुक, और हमारे लॉग बुक में क्या होता है, log टू द बेस 10 होता है. तो अगर मुझे यहाँ पे और एक फॉर्मूला है कि अगर मुझे ln को log में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303. अगर मेरे पास ln का वैल्यू है और मुझे log में अगर कन्वर्ट करना है तो टू कन्वर्ट ln इनटू log आई हैव टू मल्टीप्लाई विच नंबर, 2.303. ये डेरिवेशन बहुत बार बार आएगा. हम लोगों ने 11th में भी किया था कि अगर मुझे ln को log में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से. तो सिमिलरली मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, इधर माइनस nRT, मतलब मैं माइनस nRT मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2.303 से, और फिर ln को मैं लिखूंगा log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1. तो मैं सेम फॉर्मूला रीअरेंज करता हूं. W max इज इक्वल टू माइनस nRT सॉरी ये पहले मैं लिख देता हूं, ए नंबर माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1. ये रहा हमारा
work, maximum work का formula. So what is the formula for maximum work we got? W max is equal to, मतलब maximum work is equal to minus 2.303 nRT. N मतलब number of mole, R मतलब gas constant, T मतलब temperature, log V2 upon V1, where V2 is a final volume and V1 is a initial volume. एक लास्ट स्टेप बाकी है, 1 मिनट थोड़ा होल्ड करो. ओके ना, लास्ट एक स्टेप देखो, तो हमने लास्ट ईयर 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ किया था, बॉयल्स लॉ. व्हाट इज द बॉयल्स लॉ? P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. We always say Boyle's law, and we say that in the Boyle's law at constant temperature, मतलब अगर मुझे Boyle's law स्टडी करना है तो वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाय यूजिंग Boyle's law at constant temperature P1 V1 is equal to P2 V2. और मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करता हूँ, V2 अपॉन V1. ये V2 है, V1 यहाँ पे लेके आया, तो V2 अपॉन V1, तो यहाँ पे क्या बचा? P1 अपॉन P2. मतलब मुझे यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है, जहाँ पे V2 अपॉन V1 है, V2 अपॉन V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 अपॉन P2. तो सेम फॉर्मूला आई विल राइट हियर, W max मतलब मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2. मतलब अगर हमें प्रेशर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर हमें वॉल्यूम दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करो. ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मतलब पहले वाले सिलेबस भी 10 साल के पहले भी सिलेबस था, उसमें ये डेरिवेशन था. पिछले 10 साल गए उसके अंदर भी ये सिलेबस में था. तो बहुत बार बार ये डेरिवेशन आया होता है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो मैं एक बार थोड़ा वापस तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कंसेप्ट क्या था हमारा. एक मिनट मैं थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, तो किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकता है. एक मिनिट, तुम्ही ऑडिओ ऑन करू शकता का रे तुमचा? तर माझ्याकडे म्यूट ऑल दाखवतोय. हॅलो. हाँ सर. हाँ ओके ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, चालेल, ठीक. ओके, आई जस्ट रिपीट, एकदा डेरिवेशन मी रिपीट करतो पुन्हा एकदा, and then we'll just stop it. See here, what is the formula we are having? We are having the formula, एक मिनिट ब्लर दिसतंय थोडं. Yes, what is the formula we are having? Expression for maximum work. हमें अभी maximum work कभी मिलेगा? सबसे पहले हमें मालूम है maximum work के लिए क्या होना चाहिए? Difference between the driving force and the opposing force should be very very small. इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे? Every time external pressure is reduced by a very small amount, and then the volume of the gas is also increased by a very small amount, correct? And therefore small amount of the work done dW is equal to what? Minus P external dV. पर हमें मालूम था कि गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए P माइनस P एक्सटर्नल dP आया. फिर dP को ये साइड में लेके गए तो P एक्सटर्नल की जगह हम लोगों ने क्या लिखा? P एक्सटर्नल की जगह हम लोगों ने P माइनस dP लिखा. फिर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस P माइनस माइनस प्लस dP, और बाद में ब्रैकेट ओपन कर दिया. स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P dV. बट dP और dV को मैंने निगलेक्ट कर दिया बिकॉज देयर स्मॉल चेंज इन द प्रेशर एंड स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, करेक्ट? तो ये मेरे फॉर्मूला मिला. बाद में स्मॉल वर्क डन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस P का इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने, और dV मतलब V1 टू V2. लेकिन यहाँ पे कौन सा गैस मैंने यूज किया था? आइडियल गैस यूज किया था. तो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या था? PV इज इक्वल टू NRT था. तो P इज इक्वल टू NRT अपॉन V. तो यहाँ पे प्रेशर की जगह हम लोगों ने NRT अपॉन V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर W max इज इक्वल टू माइनस NRT TV. यहाँ पे फॉर्मूला है dV अपॉन V इज कॉल्ड एज LNV, where the initial limit is V1, final limit is V2.
बाद में हम लोगों ने यहाँ पे दोनों लिमिट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में log a माइनस log b जैसा होता है तो हम log a अपॉन b लिख सकते हैं, यहाँ पे v2 अपॉन v1 लिखा। हम लोग ln का मतलब नेचुरल लॉग है, हम लोग लॉग बुक यूज करते हैं, हमारे वैल्यू बेस 10 में दिए हुए हैं, तो मैंने ln को log में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2.303 से। ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ अगर मुझे वॉल्यूम दिया रहेगा तो, लेकिन अगर मुझे प्रेशर दिया रहेगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Wmax इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है। ओके, तो अभी मुझे बोलो पहले, अगर किसी को डाउट है तो अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बोलो। Yes, anyone has any difficulty in this derivation which we have done just now? थैंक यू एरॉन। और किसी को डाउट है क्या? अगर है तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो कि कहाँ पे डाउट है, किधर है। ओके ठीक है, थैंक यू टू ऑल। देखो लेकिन अभी मुझे क्या करना है, देखो मैंने नोट्स तो तुम्हें दिए हैं, मैंने वहां पे तुम्हें कुछ लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन एक तुम्हारे पास नोटबुक रहेगा, नोटबुक जो 11th में क्या करते थे, एक ही बुक में सब जगह लिखते थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो घर में बहुत सारे बुक पड़े रहेंगे, तो एक बुक निकालो, उसमें से कुछ पेज जो पहले से लिखे हुए निकाल दो, उसमें पहला डेरिवेशन तुम्हें ये डेरिवेशन लिखना है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा, ये डेरिवेशन लिखो। और दूसरा मैंने आज का जो डेरिवेशन किया है W मैक्स, ये डेरिवेशन लिखो। दिस टू डेरिवेशन हैज टू बी कॉपीड फ्रॉम नोट्स टू द नोटबुक, बिकॉज आगे चल के मतलब और एक लेक्चर के बाद हमें इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम which are based on W is equal to minus Px external delta V, and we have to solve the problem which are based on the W max, but we'll solve the problem later on after one more lecture. But till then, write down these two derivation in your notebook. Have you all understood? ये दो डेरिवेशन तुम्हारे नोटबुक में लिख के रखना है, और कहां से कॉपी करोगे, फ्रॉम नोट्स। ठीक है, यस कंपल्सरी करो, बिकॉज इसके ऊपर दोनों के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलाज आए हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी किसी को डाउट है तो एक मिनट खाली रुकता हूँ, तो जस्ट बोलो, अगर किसी को रहेगा तो अपना ऑडियो ऑन करो। और देखना तो कितना पब्लिक आया है आज, लास्ट टाइम तो बहुत कम था। अरे बाप रे, 22, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था। का रे लोक जातात निघून, एरॉन क्यों ऐसा पब्लिक कम होता है? स्टार्टिंग में 32 था, अभी खाली 22 ही लोग हैं। एरॉन ऐसे बीच बीच में एग्जिट क्यों करते हैं? अरे बोलो। ओके ओके, नेटवर्क इशू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, देन हम लोग आगे वाले लेक्चर में और एक कंसेप्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल।